Good morning, my dear student. Today we are going to read your class 8 civics chapter 1st, the constitution. In this chapter we have discussed the importance of constitution, what is the meaning of constitution, who wrote constitution, why wrote constitution, and such type of other questions. And we have also read the various case study. We have discussed the story of Sabnam. We have discussed the story of Suresh, where he was class monitor. We have read the story of boys and girls, where the boys want to play cricket and girls want to play volleyball. But the number of the girls is shorter than boys, and boys impose their आइडिया ऑन देम. तो इस तरह की बातें, इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा. अब हम लोग इन चीज़ों पे बात करेंगे कि संविधान के जो नियम हैं, जो संविधान के जो विचार हैं, उससे किस तरीके से, उनके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, उनके की फीचर्स क्या क्या हैं, और किस तरह से संविधान हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है. हम लोगों ने इन एग्जाम्पल्स के आधार पर प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों को पढ़ा, देखा किस तरीके से हम लोगों ने कहा कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए. अगर कोई कुछ नियम बिगड़ जाए तो संविधान किस तरीके से उसे नियंत्रित करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रूल उसे किस तरह से देखेंगे, इन सारी चीज़ों को. वन मोर थिंग्स आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट इफ द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, सपोज द गवर्नमेंट वुड बी वेरी करप्ट, in that situation Supreme Court play very important role in our country. As a guardian, he has right to take decision. उसको अधिकार है, वो निर्णय लेता है, सरकार को संविधान के खिलाफ काम करने के लिए रोकता है. According to constitutional provision, Article 137, the Supreme Court has right. Supreme Court has right to what? To stop the rules. उस नियमों को, उस कानूनों को निरस्त कर दे जो पार्लियामेंट ने बनाए और जो समाज के लिए, देश के लिए, भारतीय संविधान के नियमों के खिलाफ हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हों, ऐसे नियमों को खारिज कर सकता है भारतीय संविधान. तो इन चीज़ों के बारे में विस्तार से हम यहाँ पे देखेंगे. आज देखिए, कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण. क्या लक्षण है भाई उसके? तो कहता है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको. द बिगिनिंग ऑफ द 20th century in Indian national movement had been active in the struggle for independence from the British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagine and planning what a free Indian would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of the authoritarian rule under the colonial state, the convinced Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then when was work out the way in which the democratic government would be set up in Indian and the rules that would determine in the focusing. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. These members, Constituent Assembly, had a huge task before them. The country was made up of the several different communities who spoke different languages, belonged to different
religion, and had a distinct culture also when the constitution was being written. India was going through the considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast masses of people appealed the dismal. All of these issues played on the mind of the member of the Constituent Assembly as drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave the country a visionary documents that reflected respect for the maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflected their concern for eradicating poverty through socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representatives. Okay, no doubt this paragraph is long. Don't be in any type of confusion. मैं इसे वन बाय वन क्लियर कर दूंगा. एक एक पैराग्राफ ध्यान से बस सुनिए. दिस इज अ स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. When you will read, when you will think, and when you will mindly observe, then you can get it very easy way. आप आसानी से इसको समझ सकते हैं. सब कहानी के रूप में से समझते जाइए. संविधान की जरूरत क्यों पड़ी. अब हम बात करने जा रहे हैं संविधान के मुख्य लक्षणों पे. संविधान कैसे बना और संविधान के कुछ नियम क्या है. तो कहता है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20th सेंचुरी के आसपास 20th सेंचुरी तक आते आते जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट थे, जो कई पुराने दशकों से चल रहे थे भारत में, उन चीज़ों में बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन हुआ. और कहता है कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई दशक पुराना हो चुका था. स्वतंत्रता संघर्ष, जो नेशनल मूवमेंट्स थे, इसके दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए. स्वतंत्रता मिलने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का फ्यूचर कैसा हो. ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन रूल्स को मानना पड़ा था, वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे. जो रूल्स, जो नियम बनाए गए थे, वो रूल्स नियम अंग्रेजों ने भारत में सेट किए थे, न कि यहाँ के लोगों ने बनाए थे. तो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह जरूरत आ पड़ी थी कि औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए. इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों के विचार, जनता के विचार को महत्ता दी जाए, कॉमन सिटीजन्स के राइट्स को ध्यान दिया जाए. गवर्नमेंट जो बने उसमें जनता की झलक, आम सिटीजन्स का रिफ्लेक्शन होना चाहिए. जो कॉलोनियल स्टेट थे, उनके एक लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए. उसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले, सभी को सरकार में समान रूप से हिस्सेदारी मिले, देश में कहीं भी किसी भी तरीके का व्यापार व्यवसाय करने की छूट मिले, किसी भी तरीके का उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना हो और सबके ऊपर एक समान व्यवहार किया जाए. इस तरीके का संविधान भारत के लिए बने, ऐसा भारतीय लोगों का मानना था. क्योंकि भारत में जो संविधान थे, इसके पहले भारत में जो नियम थे, उसको अंग्रेजों ने बनाए, और वो नियम भारत में एक अत्याचारी शासकों द्वारा बनाए गए नियम थे.
कहता है कि ये जो व्यवस्था थी इसमें इसमें ये तय करना था कि भारत एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे हो, भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बने, उसके कामकाज के नियम क्या हों, कैसे वो काम करेगी। यह काम किसी एक आदमी के बस में तो था नहीं, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात की गई, एक वर्ग बनाने की बात की गई। ये संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 300 लोगों ने अपना योगदान दिया जो 1946 में कटे थे। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और फिर संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति हुई। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए। संविधान सभा की बैठक हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इट मीन्स 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे भारतीय संविधान को बनने में। 165 बैठकें हुई, इससे ज़्यादा बैठकें हुई। डेली डिस्कस और डिबेट्स होते थे, जो लेटर्स आते थे सब देश में, और लोग अपनी बातों से जो उनको अपने प्रॉब्लम्स को, अपने लोगों की बातों को संविधान में नियम बनाने के रूप में रखते थे। उस पर तमाम चर्चाएं हुई और संविधान सभा की बैठकें चलती रहीं। ये संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सदस्य थे, इनके सामने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश के अंदर रहने वाले भिन्न भिन्न समुदायों के हित, भिन्न भिन्न लोगों की उनकी अलग अलग भाषाएं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग और उनकी अपनी संस्कृति, सबके हितों का ख्याल रखा जाए संविधान में। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज द वेरी इम्पॉर्टेंट information which I want to give you here, that in Constituent Assembly the 80% member who belongs to the Congress party, but it has never been that Congress party imposed their view on the constitution. The 80% member जो थे उसमें कई लोग हर अलग अलग वर्ग से थे, अलग अलग जाति से थे, अलग अलग कम्युनिटी से थे, अलग अलग क्लास से थे, कास्ट से थे, और सभी लोगों ने अपने अपने लोगों के हितों की बात संविधान में की रखा। आप क्लास 9th की बुक पढ़िए, अपने बड़े भैया की बुक लीजिए, या क्लास 12th में अगर आपके कोई बड़े भाई पढ़ रहे हों उनसे लीजिए, और संविधान निर्माण पर उनसे बात करिए कि भारत का संविधान कैसे बना, कौन बनाया, क्या दिक्कतें आई, कौन कौन लोगों ने किस किस तरीके के विचार दिए। तब आपको वहाँ पे जयपाल सिंह जो ट्राइबल लीडर्स थे, आपको दुर्गा बाई जो विमेंस राइट के लिए लड़ रही थी, आपको साउथ इंडियंस के कई सारे लीडर्स मिलेंगे जो साउथ इंडियंस के राइट्स के लिए लड़ रहे थे। B.R. अम्बेडकर जो दलितों की बात कर रहे थे, B.R. अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। इन सारी चीज़ों को देकर के भारत में एक संविधान की व्यवस्था की गई। सब लोगों ने अपने अपने हितों की बात की, और फिर संविधान सभा के जो लोग थे उनके लिए एक बड़ी चीज़ ये थी उनके सामने कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। और वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी समस्याओं का सामना कर रहा था, उथल पुथल मची हुई थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, देश में दंगे हो रहे थे, कुछ रियासत यह नहीं तय कर पा रहे थे, कुछ प्रिंसली स्टेट ये नहीं तय कर पा रहे थे कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अत्यंत ही भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ढेर सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बड़ी बहादुरी से निभाया।
उन्होंने इसको पूरा किया। संविधान निर्माण की काम को उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संपन्न किया। देश की एक ऐतिहासिक कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। इट मीन्स कि इस बात का ख्याल रखा गया कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी और इंटीग्रिटी का कैसे बनी रहे। द कहता है यहाँ से, देखिए अगर कहता है तो कहता है कि द विजनरी डॉक्यूमेंट्स दे रोज द ओकेजन्स एंड कीप दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी while preserving national unity. The final documents also reflected their concern for the what? The eradicating poverty through socio-economic reform as well as the emphasis in growth. यहाँ पे कहता है सीधा सीधा कि उन लोगों ने अपने अधिकारों को बड़े ही जिम्मेदारी के साथ निभाया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि भारत की विविधता के प्रति उन्होंने जो गहरा सम्मान बना रहे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की व्यवस्था भारत में बनी रहे, सबके हितों को संरक्षित किया जा सके। इस तरह उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए जो गरीबी उन्मूलन और जन प्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया जाएगा। लेखक आपको बताएगा, ऑथर आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स को, कुछ और जरूरी चीज़ों को। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता में एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधियों से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए। ये विविधता में एकता क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, इन चीज़ों को दिमाग में रखे रहिए और फिर इसके बाद हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इसे समझने की कोशिश भी कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में साथ इन जो उनकी चिंताएं थी उनको किस तरीके से हल किया। भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी। कहता है लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग दीज की इन माइंड above mentioned concern of the diversity, the unity, socio-economic reform and the representation that the authors of these documents were the grappling with, try and understand that why in which they try to balance this concern with their commitment to the transformed independent India into strong democratic society. कहता है दिमाग में ये बात रखी रही है कि किस तरीके से भारत में जो समस्याएं थी, सामाजिक आर्थिक असमानता, अनेकता में एकता या विविधता की बात, कई सारे भाषाभाषी लोग, कई सारे धर्म के लोग, कई सारी जातियां, कई सारे संस्कृति के लोग, डेमोग्राफी अलग अलग, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, कहीं समतल, कहीं प्लेन, उन सबकी संस्कृति अलग, सबके त्यौहार अलग। किस तरीके से भारतीय संविधान के लोगों ने इन चीज़ों को बनाए रखा, इन चीज़ों पे ध्यान देगा, इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। फिर हम आगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इन चीज़ों को समझने रहेंगे। आइए अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? कहता है फेडरलिज्म दिस रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया we have government at the state level and the center panchayati raj is third tier of the government, and you have read about this in your class 4th book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read more about the central government. The number of communities in the India meant that the system of government needed to be devised that did not involve only person the sitting in the capital city of the New Delhi making the decision for everyone. Instead, it was important to have another level of the government in the state so that decision could be made for the
particular area. While each state Indian enjoy announcement in exercising power of the certain issue subject of national concern require that all of these states follow the law of the central government. The constitution contains lists that detail the issue that each tier of the government can make law on. In addition, the constitution also specific where each tier of the government can get the money from for the work that it does under the federalism. That is, states are not merely against the federal government but draw their authority from the constitution as well. All the reasons, all the persons in India are the grouped by law and the policies made by each of these level of government. Okay, so let us come to point फेडरलिज्म. फेडरलिज्म से क्या मतलब है? फेडरलिज्म क्या बताता है? कहता है कि दिस इज रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन कंट्री. फेडरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसे समझिए संघ. संघ को कहेंगे, संघ को क्या कहेंगे? संघ को यूनियन कहते हैं. कहते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट. भारत राज्यों का संघ है. इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट. तो फेडरलिज्म यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट की बात की है. फेडरलिज्म जो वर्ड है यहाँ पे भारतीय संविधान के में दूसरे संदर्भ में होता है. फेडरलिज्म अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीनिंग्स है उससे अलग हट के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीनिंग है वहाँ देखा जाता है. फेडरलिज्म का मतलब है कि यूनियन ऑफ द स्टेट. कहते हैं फेडरलिज्म क्या है? इसका मतलब होता है देश में एक से ज़्यादा स्तरों पर सरकार का होना. मतलब एक इसको सर्किल में बांट दीजिए. एक बड़ी सर्किल, एक बड़ा जो कंट्री के अंदर छोटा सर्किल वो क्या होगा? स्टेट. उसके अंदर एक छोटा सर्किल जो क्या होगा? जो स्थानीय निकाय होंगे. इसमें आप फिर चाहेंगे तो सब ग्रुप कर सकते हैं तीसरे सर्किल में. उसमें आप कर सकते हैं जिला पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत. तो जो 3 पार्ट में सरकार के गठन की बात की जा रही है यही फेडरलिज्म है. कई स्तर पे सरकार है, केंद्र स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और ग्राम स्तर पे भी, गांव के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे और सेंट्रल स्तर पे. कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है. जो गांव की पंचायती राज व्यवस्था है वो तीसरा लेयर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. क्लास 7 की किताब में आपने राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली को देखा था, कैसे काम होती है. इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे. यू हैव रीड अबाउट द फंक्शन, द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन क्लास 7. टुडे वी विल डिस्कस द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे ये काम करती है. इन चीज़ों पर हम पढ़ेंगे. कहता है भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ये पूरे देश में फैसले न लेने लगे. इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इन स्थानीय स्तरों पे, इन इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी किए जा सकें. भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने की स्वायत्त अधिकार है, ऑटोनॉमस पावर है. स्टेट भी कुछ मुद्दों पे स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकते हैं. राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है. कार्य क्षेत्र को स्पष्टता के लिए संविधान में कई सूचियां दी गई हैं जिसमें बताया गया है कौन से स्तर को सरकार किन मुद्दों पे कानून बना सकती है. इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है. संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं. भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों के सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की नीतियों को
अंतर्गत आते हैं, सबको ये बात माननी पड़ती है। इट मीन्स author want to inform you with the help of this paragraph that in India there are the so many diversity but it is the quality of our Indian nation। भारतीय राष्ट्र की एक बहुत बड़ा गुण है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, विविधता में एकता है। इसी आधार पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को त्रिस्तरीय सरकार के गठन की बात पर कहता है। एक सरकार जो केंद्र स्तर पे होगी, एक सरकार जो राज्य स्तर पे होगी और एक सरकार जो ग्राम पंचायत का काम देखेगी, गांव स्तर पे होगी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ये जो बात की गई ये अपने में यूनिक थी। फिर कहता है कि अधिकारों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सभी की अपनी सीमाएं हैं, राज्य की अपनी सीमाएं हैं, केंद्र की अपनी सीमाएं हैं और गांव की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सभी को इन चीज़ों को देखना है। कहता है इसके लिए लिस्ट बने हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कांकर लिस्ट, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची एंड कांकर लिस्ट इट मीन्स समवर्ती सूची। तो जो ये तीनों लिस्ट हैं इसमें सभी के अपने अपने अधिकार हैं कि कौन क्या काम करेगा और कौन क्या काम नहीं करेगा। कहता इस तरीके से हम सभी लोग, भारत के नागरिक, जो इनके द्वारा बनाए गए नियम हैं, सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा और गांव के द्वारा, उसे मानने के लिए क्या है, कृत संकल्प है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द different types of government that you just read about, that consist of representative who are elected by the people. Your class 7th book begin with the story of Kanta, who was standing the line vote during an election. The Constitution of Indian guarantee universal adult the suffrage from all citizens. When they are making the Constitution, the member of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the mass of universal adult suffrage, and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches or the traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in the elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functions, unit 2 of this book. It means in this paragraph author want to explain you भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है कैसे चलती है। तो कहता है कि सरकार के सभी स्तरों पर जो रिप्रेजेंटेटिव जिनका इलेक्शन होता है और हम खुद करते हैं, इन सब बारे में डिटेल आप क्लास 7th में कांता की कहानी में पढ़ चुके हैं, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने सभी एडल्ट सिटीजन्स को, नागरिकों को वोट करने का अधिकार देती है, वोट डालने का अधिकार देती है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या बना रहे थे, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल डेमोक्रेटिक थॉट्स, उनकी एक्टिविटीज़
उनके तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत, पुरुष में जो फर्क है, ऊंच नीच की जो बेड़ियां हैं, उसको भी तोड़ा जा सकता है यदि सभी को समान अधिकार, वोटिंग राइट्स दे दिए जाएं। वन वोट है वन वैल्यूज। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब था कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव देश के सभी लोगों में सीधी भूमिका होगी। सार्वभौमिक मताधिकार का सेंस ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के लोगों को ये अधिकार था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, जो उनके लिए नियम बनाए, कानून बनाए। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, कोई भी हो, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसके बारे में हम कार्य लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक जो कार्यप्रणाली है और प्रतिनिधित्व में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में हम अपने जो दूसरे सेकेंड यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना ही देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स पे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। बट बिफोर फंडामेंटल राइट्स वी हैव आल्सो डिस्कस द सेपरेशन ऑफ पावर। आज का इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सेपरेशन ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट्स के साथ। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।